आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बंधुओं, जब एक टाइम हमारे अपोनेंट्स माता की भारत माता की थे, आज वो आपको सारा विवरण देंगे। पंडित जी दीजिए। हाँ जी महाराज, मैं 1900 किसकी गाड़ी है? गाड़ी इधर ही है। जय श्री राम जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਜੀ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੱਤ ਛੱਤ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਢੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਲਖਨਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇਰੀ, ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਕਮਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਆ। ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਘਟੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਤਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਲਿਆਓ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਚਿੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਾਇਕ ਆ। हाँ हाँ करो करो करो।
लो लो मुंह काला करो छित्र फेरो थल्ले रखो पैरां 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਔਕਾਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हाथ पूंछ लो, हाथ सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बंधुओं, अभी मैं 2 दिन से लगातार जम्मू इलेक्शन में आया हुआ हूँ, लेकिन जम्मू के अंदर पहली बार जनता के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होंगे, वोट से ही राजा बनेंगे। 370 का डॉक्टर अंबेडकर जी ने विरोध किया था कि 370 नहीं होनी चाहिए। 370 में कारण कश्मीर के लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य लोग कश्मीर में नहीं आ सकते, नहीं मकान ले सकते। लेकिन हमें खुशी है कि हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर अपना बलिदान दिया है। धारा 370 के कारण जो हमने देखा है कि 3 परिवार 70 वर्ष तक कश्मीर का शोषण करते रहे। अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, नेहरू गांधी परिवार हो, ये 3 परिवार। हमारी कल्पना ये थी कि छोटी छोटी रियासतें बनकर मिलकर एक भारत बनेंगे। वोट का अधिकार मिला है तो इससे ये रियासतें नहीं चलेंगी, लेकिन यहाँ पर इन 3 रियासतों ने 70 वर्ष तक कब्जा कर रखा था। आज 370 हटने के बाद में जैसा पूरा देश के अंदर करीब करीब 85% लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कल ही राजस्थान का रिजल्ट भी आया है, जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में हमने भारी भरकम तरीके से जीत हासिल की है। उससे पूर्व भी बिहार है, अन्य अन्य बाई इलेक्शन है जिसमें हमारा स्ट्राइक रेट 67% आया है। आज देश की जनता ने मन बना लिया है, वह नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के तहत ही उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही राष्ट्र एकजुट और मजबूत रह सकता है। अनेकों अनेक योजनाएं उसका परिणाम भी है कि मुझे ध्यान आता है कि जब 2013 के अंदर पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, गरीबी की रेखा के नीचे कौन है और अमीर कौन है, तो उसमें निर्धारित हुआ 32 रुपए कमाने वाला अमीर है, उससे नीचे गरीब है। कांग्रेस लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, गरीबी हटाओ का नारा देकर बार बार वो जीत कर आते रहे। गरीबी के बारे में जिस प्रकार से मजाक पार्लियामेंट में उड़ाया गया कि 12 रुपए का खाना भी मिलता है, 5 रुपए का भी खाना मिलता है जमा मस्जिद पर, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं मालूम कि खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई की भी जरूरत पड़ती है, कपड़ों की भी जरूरत पड़ती है, अनेकों अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद में जब चर्चा हुई तो एनसी शर्मा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, इस सभी कमेटियों की रिपोर्ट थी कि 45% एवरेज लगाए तो 45% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि ये आंकड़ा कहां से आया, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस की बैठी हुई कमेटियों ने ही ये आंकड़ा प्रस्तुत किया कि ये वो लोग हैं, हमने घर घर जाके सर्वे किया, ये वो लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पक्की छत नहीं है, जिनके घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है। ऐसे लोग हैं, पति कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, शिक्षा की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि ऐसा भारत जो 70 वर्षों के अंदर
कांग्रेस के कार्यकाल में बना है, हम इसमें सुधार करेंगे। और 2014 में जब हमारी सरकार आई तो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं, जनधन योजना जिसके द्वारा खाते खोले गए, उसका एक लक्ष्य था। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उसका लक्ष्य यह था कि हम जो भी योजनाएं जनता के लिए पहुंचाएं, जनता के बीच में जानी चाहिए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85% मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे जाते हैं, 85% लोग बीच में खा जाते हैं। ये सब कांग्रेसी दलाल थे जो गरीबों तक उसको नहीं पहुंचने दिया जा करते थे। आज जनधन योजना के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने जनता का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि हम किसी को गरीब को अमीर बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते हैं। और मजबूत और सशक्त भारत के अंदर वहां पर रहने वाला हर नागरिक सशक्त होना चाहिए। इसलिए बच्चा पेट में होने के शुरू कर बुजुर्ग होने तक हमने सारी योजनाएं बनाई। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हमने 6000 रुपये दिए ताकि वो पौष्टिक आहार ले सके। माँ बाप का बच्चा भी हष्टपुष्ट हो, लेकिन देश का नागरिक भी हष्टपुष्ट होना चाहिए। उसके बाद 7 इंजेक्शन इंद्रधनुष के माध्यम से हमने दिए। जो अमीर लोग इंजेक्शन लगाकर अपने बच्चे का बीमारी से मुक्त करते हैं, हमने गरीबों को दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम 1000 रुपये महीना हमने उनके पेरेंट्स को बोला कि वे 14 वर्ष तक देंगे, 1,68,000 बनता है। बाकी पैसे हम मिलाकर जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 6 लाख रुपया उसको मिलेंगे। ना पढ़ाने की चिंता है, ना उसको शादी की चिंता है। मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने युवाओं को व्यापार देने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हम गरीबों को, दलितों को और महिलाओं को नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। आज इस 6 वर्ष के अंदर अनेक व्यवसायी बने हैं लोग बाग। उसके बाद हमने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना के माध्यम से आपने देखा होगा कि अमीर लोग सब इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा करा लेते हैं, हेल्थ बीमा करा लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। 5 लाख की उनको बीमा योजना दी गई, वे अपना इलाज कहीं भी करा सकते हैं। हमने गांवों तक 18,000 गांव ऐसे थे जहां लाइट नहीं पहुंची, वहां लाइट पहुंचाने का काम किया। नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर का इसलिए मैंने दौरा किया क्योंकि यहाँ पे डीडीसी के चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल, उन्होंने अचानक से डिक्लेयर कर दिए और मेरी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि मैं पार्टी, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष और उनके सभी साथी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। हालांकि ये लोकल चुनाव है, स्थानिक चुनाव है, तो स्थानिक चुनाव में बड़े दिल्ली के लोगों का कुछ काम ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मैं उनको सपोर्ट दिखाने के लिए एक दिन के लिए आई थी और हमारे लोगों को मिलने के लिए। एक तो कोविड की सिचुएशन में ये चुनाव गवर्नमेंट ने लिए है, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात हुई, क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो चुनाव में थे वो कोविड से ग्रस्त है। आज भी आईसीयू में हमारे एक भूतपूर्व सांसद मदन लाल जी आईसीयू में है, उनका बेटा भी एडमिट है। बहुत सारे लोग हमारे एडमिटेड हैं। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कोविड हुआ है। तो ये ऐसे हालात में उन्होंने करने नहीं चाहिए थे, तो भी उन्होंने चुनाव लिए हैं। ऐसे अगर चुनाव वो ये लेते हैं तो मैं अपील करती हूँ और मैं आह्वान करती हूँ कि अगर ये चुनाव वो लेते हैं तो जल्द से जल्द असेंबली के भी चुनाव डिक्लेयर करें और असेंबली के चुनाव ले और यहाँ पे एक लोक नियुक्त सरकार हो जाए जम्मू कश्मीर में। ये उन्होंने करना चाहिए, ये हमारी मांग है। मैं यहाँ आने के बाद देख रही हूँ कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोगों को, जो अध्यक्ष सहित हमारे सभी लोगों की सिक्योरिटी निकाल दी गई है। तो इस हालात में हमारे लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो आप पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी देंगे और जो लोग विरोधी पार्टी के उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, जिनको खतरा है, जिनके लिए पहले सिक्योरिटी थी, उनको 2 दिन पहले उनकी भी सिक्योरिटी निकाल दी है। तो उसके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो सिक्योरिटी वापस देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये इतने स्थानिक चुनाव में बीजेपी की एंटायर लीडरशिप और बीजेपी के एंटायर जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो यहाँ आई हैं। मुझे उनको एक ही सवाल पूछना है कि ऐसे हालात में अगर ये इतने अपने काबिलियत पे विश्वास रखते हैं तो क्यों उन्होंने इतने लोगों को दिल्ली से बुलाया? क्यों अपने लोगों को नहीं चुनाव लड़ने दिया, लोकल लोगों को? क्योंकि ये तो चुनाव लोकल है, यहाँ पे उनको किसी के आने की जरूरत नहीं थी। और मुझे दूसरा भी एक बात लगता है कि जो बात हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टेटहुड देने की, जो कांग्रेस की हमेशा दिल की बात रही है,
तो स्टेटहुड देने के लिए बीजेपी ने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है, वो भी अभी इस चुनाव के उपलक्ष्य में उन्हें बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। इस प्रदेश की मांग है कि जो 3 मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस करिए, प्रदेश तत्व हमें बहाल कीजिए, जो यूटी में बदला है वो हमें चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार है वो रोजगार छीनने नहीं जाने चाहिए। इसलिए आप लॉफुली क्या करते हैं, जो हमारे साथ वाले हिमाचल में हो रहा है 118 आर्टिकल के अनुसार, वहां पे जमीन कोई नहीं ले सकता है, जमीन का अधिकार वापस दे दे और हमारे लोगों की नौकरियां, बेरोजगारों को नौकरियां यही मिले लोकल लोगों को। ये हमारी 3 मांगों के लिए बीजेपी ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे जो है स्टार प्रचारक आए, स्मृति ईरानी, शाहनवाज हुसैन आए, अनुराग ठाकुर, सबके साथ हमने देखा कि बहुत स्क्वाड जो था वो साथ में था। आप भी आई और खबरों के मुताबिक आपको सिर्फ एक डीएसओ, क्यों? अभी हम ये सवाल आपने उनको पूछना चाहिए, हम कैसे बताएं? ऐसा तो नहीं कि जिन जिन दूर दराज इलाकों में अगर आप भी जाना चाहें वहां पर जाना पाए? बिल्कुल, हम तो यही बोलेंगे कि इनकी इच्छा ही नहीं कि हमारी लीडरशिप आ जाए यहाँ पे, लेकिन हमने भी यही किया कि मीर साहब को कम से कम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी लिस्ट सिक्योरिटी उन्होंने निकाल दी है। इसका मतलब साफ है, उनका उद्देश्य साफ है कि उनको चाहिए कि हमारे कोई भी लोग घूमे नहीं और प्रचार न करें। नहीं साहब, आपसे सवाल है कि क्या आपकी जान को खतरा सिर्फ कश्मीर में है, जम्मू में नहीं? देखो, जान तो पहले अल्लाह ताला बचाता है, मगर सरकारों का फर्ज है। हमने लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिल के भी ये कहा, हमने कहा एक फार्मूला बनाइए, अगर नेशनल पार्टीज के ओहदेदार है वो देख लीजिए, डिफरेंट पार्टीज के एक्स MLA एक्स मिनिस्टर, आज तो सारे एक्स हैं, आज कोई सिटिंग नहीं है। आप रूलिंग पार्टी के, दिल्ली में रूलिंग पार्टी के लोगों को वजारत रोड में अभी भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में बिठा रखे हो और उनको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो ये कौन सा नजरिया है कि उनको लिए सब कुछ अरेंज है और जो नेशनल पार्टी के दूसरे ओहदेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको आप बिल्कुल ही फैसिलिटेट नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो भी धर्मा ट्रस्ट ने आज तक जम्मू और कश्मीर के मंदिरों में धांधलियां की हुई हैं, श्री रघुनाथ मंदिर सेवा समिति की तरफ से है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से, जैसा कि आप अभी हमारे पंडित जी ने आपको विवरण दिया सारा, मंदिरों की कैसी खस्ता हालत हो चुकी हुई है जो कि धर्मा ट्रस्ट के अंडर है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जितनी धर्मा ट्रस्ट के अंदर जितनी भी ज़मीन और जितने भी मंदिर हैं हिंदुओं के जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनका एक ट्रस्ट बनाया जाए। जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का श्री जगमोहन जी ने एक ट्रस्ट बनाया था 1986 में। आज भी जम्मू और कश्मीर की जनता, क्या पूरे वर्ल्ड की जनता उनको उस नाम से जानती है कि ये जो श्राइन बोर्ड है श्री जगमोहन जी ने बनाया था, जो आज तक उनका नाम चल रहा है और मेरे हिसाब से ये अगले हज़ारों साल तक उनका नाम चलता रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि यही काम अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नए हैं मनोज सिन्हा जी, अगर धर्मा ट्रस्ट की जगह एक ट्रस्ट अलग से श्राइन बोर्ड बना दें, जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं वो सारे एकत्रित करके उस ट्रस्ट में डाल दें, ताकि हमारे मंदिरों की सही ढंग से देख रेख हो सके और अगले हज़ारों साल तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को भी पूरे वर्ल्ड की जनता वाकई में याद रखेगी, क्योंकि जम्मू हमारा टेम्पल्स ऑफ सिटी, मंदिरों का शहर है और यहाँ पर इतने पुराने पुराने मंदिर हैं जो आज की डेट में खस्ता हालत में चल रहे हैं। और श्री रघुनाथ मंदिर सेवा समिति जो कि धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट धर्मा ट्रस्ट के, हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं गवर्नर साहब से ये अपील करवाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ तो जैसे जगमोहन जी का आज की डेट में नाम चल रहा है, वैसा नाम आपका कभी ज़िंदगी में जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाएगा। अगर आप अपना नाम वाकई में जगमोहन जी जैसा बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे उन्होंने श्राइन बोर्ड बनाकर अपना नाम कहीं का कहीं पहुंचा दिया, वैसे ही अगर आप धर्मा ट्रस्ट के एक अलग से श्राइन बोर्ड बनाकर सारे मंदिरों को उस ट्रस्ट में डालें, ताकि आपका भी नाम जगमोहन जी के मुकाबले में रह सके। जय हिंद, जय भारत। आज आपके माध्यम से हम एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं
भूमि कानून के तहत हम कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून लागू किया है, ये लैंड लॉ, उसके तहत यहाँ पे तालाब तलों में या कुछ और अदर एरियाज में यहाँ पे महाजन और क्षत्रियों को भूमि खरीदने पे एक पाबंदी लगाई गई है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये पाबंदी लगाई गई है, जब से हमारी ये ड्यूटी बनी है, पहले ही काफ़ी पाबंदी यहाँ पे लगाई गई हैं और हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो नई एडवाइजरी जारी हुई है उसकी कॉपी अभी तक यहाँ किसी तहसीलदार या एसडीएम के पास नहीं आई है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये एडवाइजरी जारी की है, सरकार इसको तुरंत बर्खास्त करके एक नई एडवाइजरी जारी करके, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे महाजन भाई हैं या क्षत्रिय भाई हैं, उनको इस कानून के तहत काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जिसने किसी मजबूरी के तहत या किसी और के तहत यहाँ पे ज़मीन बेची है या ली है, उनको फर्द करवाने में काफ़ी मुश्किलात आ रहे हैं। एसडीएम के पास जाओ तो उनको कहते हैं कि एडवाइजरी हमें पता ही नहीं है, तहसीलदार के पास जाओ तो उनको कहते हो कि ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप पेपर में एक एडवाइजरी नहीं जारी करके इसको जो पुरानी आपने निकाली हुई है उसको कैंसिल करके एक नया कानून जो ये आपने लागू किया है इसको बर्खास्त करें, ताकि जो ये लोग इससे वजह से दुखी हो रहे हैं, उनको ये प्रभावित कर रहा है, ये खत्म किया जा सके। माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वी वांट बीएसएफ पेपर, बीएसएफ पेपर, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीएसएफ पेपर, बीएसएफ पेपर, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अपना अपना भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बीएसएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम पिंकू कुमार शर्मा, मैं सीनियर कबड्डी प्लेयर जम्मू व कश्मीर और बीएसएफ सीएसएफ एग्ज़ाम दिया मैंने और मैं उनका कैंडिडेट हूँ। मैं अपने इसमें कम से कम 33,000 बच्चों ने जो कैंडिडेट थे जिन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ का एग्ज़ाम दिया, और उसमें 1356 वैकेंसी थी जो बीएसएफ सीआईएसएफ ने निकाली थी। और हम बीएसएफ और सीआईएसएफ और केंद्र राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस पेपर को कैंसिल किया जाए तो ऑनलाइन किया जाए, नहीं तो इसके वैकेंसी इंक्रीज की जाए, जिसमें कम से कम 10,000 वैकेंसी इन युवा को मिले। आप सब जानते हो कि पिछले दिनों 370 और 35 के कारण जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं मिली, और जो कोविड-19 के कारण 8 महीने ये निकल गए और कम से कम मिनिमम ही 15 महीने जो बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी गई। और हमारे जितना भी युवा है सारा बेरोजगारी की तरफ जा रहा है और नशे की तरफ जा रहा है। तो आप जान सकते हो कि ये सारे गाँव के युवा हैं, गांव के युवा हैं, और हम अगर 10वीं पास करते हैं ना, हम अगर 33 नंबर लेते हैं, हम अपने जम्मू में मिठाई बांटते हैं कि मैं पास होके आया हूँ। और इस भर्ती में उन्होंने क्या किया है, 80 नंबर वाले उठाए हैं, और जो 50 और 45 नंबर लेने वाले वो कहाँ पे जाएंगे। सरकार से हम यही अपील करते हैं कि कम से कम इन बच्चों को 10,000 वैकेंसी दी जाए, ताकि जब बच्चे आगे जाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सके। नहीं तो जब बच्चा जो होगा कि हथियार उठाने पे मजबूर होगा। सभी इकाइयों से एकत्रित हुए सभी एम्प्लॉयज़ आज जो एकत्रित हुए हैं, प्रोटेस्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत आज सेंट्रल ऑफिस धर्मा ट्रस्ट में जाकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट संपन्न हुआ है और उसके बाद हमारे कर्मचारी रणवीरेश्वर मंदिर परिसर में एकत्रित होकर शांतिपूर्वक चुप्पी साध कर ये बात आपके माध्यम से सभी संस्थाओं को, उपराज्यपाल को, सीबीआई को एवं उपायुक्त, आयुक्त इत्यादि सभी आयुक्त, उपायुक्त सभी इकाइयों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारी बात मैनेजमेंट एक भी नहीं मान रही है। एक छोटी सी बात जो डिमांडें हैं हमारी, जो वेतन श्राइन बोर्ड के अनुसार देना है, उसकी तो बात ही छोड़ो। हमारे जो 5 एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिए, जो एक छोटा सा ऑर्डर सेक्रेटरी महोदय जी ने उसको रिजॉल्व करना था वो नहीं कर पाए हैं। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सचिव महोदय जिस पद पर आप बैठे हैं, इस पद की गरिमा, इस पद की जो महिमा है उसको जानिए और उसको पहचानिए
और अपनी जो पावर है उसको देखिए कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं। आज एक छोटी सी एप्लीकेशन हम डालते हैं कि हमें जो सस्पेंड किया हुआ उनको बहाल कर दिया जाए, तो वो आगे से हमें जवाब देते हैं कि मैंने आपकी बात ट्रस्टियों तक पहुंचा दी है। अब ट्रस्टी जो हैं जिन्होंने राज्य स्तर का इतना बड़ा ट्रस्ट चलाना है, वो 5 लोगों को सस्पेंड करने के लिए कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे पिछले 15-20 दिनों में। आगे वो हमारी जो वेतन है वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे ऐसे जटिल फैसले करेंगे जिससे ये जो जटिल समस्या है इसका समाधान हो सके, हमें 1% भी उम्मीद नहीं है। इसलिए उपराज्यपाल महोदय से निवेदन है कि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का हमारा जो अंग एक वैष्णो देवी थी उसको ले लिया और हमारे जो बाकी जितनी भी इकाइयाँ थी उनको 1986 में बोर्ड के साथ एकत्रित नहीं किया। हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कर्मचारियों का भविष्य ध्यान में रखते हुए ये जितनी भी इकाइयाँ हैं धर्मा ट्रस्ट की, इनको भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ एकत्रित कर कर हमारे कर्मचारियों का भी सुध लिया जाए। जय श्री राम। संवेदना सोसाइटी के माध्यम से हमने जो है एक आधार कार्ड का कैंप यहाँ पर तालाब तिलों में जो है वो लगाया है। काफ़ी टाइम से जो है वो लोगों की एक समस्या थी कि लोगों के जो डोमिसाइल थे उसमें जो है वो बनने में रुकावट आ रही थी। लोगों के जो बच्चे हैं खास करके इस 1 साल में जो कोरोना की वजह से जो है वो सफरिंग हुई है उसको जो है वो कवर करने के लिए आज हमने जो है यहाँ पर जो है वो लोगों के हम आधार कार्ड बना रहे हैं। खासकर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है आधार कार्ड बनाने वालों में। आधार कार्ड बनेगा तो उनका डोमिसाइल भी जो है वो इजीली बन जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है वो ध्यान में रखते हुए आज हमने तालाब तिल्लो में जो है वो आधार कार्ड का एक कैंप लगाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी CDPO मैडम आकांक्षा जी का और हमारे पूरे CDPO डिपार्टमेंट के जो इतने भी हमारे ऑफिसरान हैं, खासकर सुंदर शर्मा जी जो आज यहाँ पर हमारे बीच में लोगों के आधार कार्ड बना रहे हैं। ये कैंप जो है वो 3 दिन तक चलेगा। मैं आपके माध्यम से जो है वो लोगों से निवेदन करूंगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में निकलकर इस कैंप का जो है वो बेनिफिट लें और अपने आधार कार्ड और अपने करेक्शन जो है अगर किसी ने करवानी है तो वो भी यहाँ पर आके करवा सकता है। जय हिंद, जय भारत।